Hello everyone. I hope I am visible. Hello everyone. If anybody can see me and hear me, please comment so that I can start my session. Wow, Ruchika, yeah. Okay. Okay, Ruchika, thank you so much for telling me. Let me wait for some more time. I am feeling great to be on my own platform and connect with all of you. I am very sure that you all will love this session with some beautiful, amazing tips for the parents. Yes, Ruchika is here. I want more people to be here. Okay, Niti is here. Right means my right. Okay. Is it okay, Niti? Am I visible now? Okay, great. So, first of all, I would like to thank each one of you for going live for this e-pop-up exhibition and making it a huge success. I am thankful to each one of you whosoever participated in this and my backend team, Busy Tech Solution, Momita, for making it so hassle-free and helping us all out with going live. It was a wonderful show, and I really enjoyed each and every one's live, where may it be some healing session or some product sessions. I really loved each session, and I congratulate you, all of you, and thank you very much for coming live and showing your products and services. And soon we are going to plan more things as per your satisfaction, and I'm very sure that as always you are going to support me again. And today I'm feeling great to be live on my own platform and connecting with you. I connect with you every day on WhatsApp, on Instagram, on Facebook page, but Connect Live has got its own charm. So I am very thankful to you that you all are here watching me. So today I have planned a session on positive parenting. First of all, why I chose this session, because I think before coming to She Connect or before starting my platform, I was a preschool consultant, and I have very closely worked with the parents, all the parents with their concern, with their challenges, with their small queries to bring up their children. So I have closely worked with all of them. So I realize that today parents are facing a lot of problem in bringing up their children. There are many reasons. I am coming to those reasons also. But first of all, I would like to tell you that why nowadays parenting is essential, why nowadays not parenting is essential, that such sessions are why it is essential. Because in earlier time, I think when I was small and when the people of my age, when they were small, they never have heard these word of parenting session or the counseling sessions or the something like that. Because the families were huge, they were joint family, and there were so many cousins, brothers and sisters staying in same home, and they used to fight with each other, they used to learn from each other, they used to play with each other. And I think with the time, that all the things have totally changed. In the present scenario, why most of the parents are looking for some parenting tips, or why they are looking for some kind of a parenting solution as per their child upbringing, because there are four major reasons which I find are important and which are conducive, which are responsible for arising the need of the parenting session. The first reason is that nowadays we have nuclear family.
द ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम हैड डिसटेंग्रेटेड. आज वो नहीं रहा है वो सिस्टम. सब लोग अलग रहते हैं. अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, मतलब पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे या तो बाहर चले गए हैं, या अगर सेम सिटीज़ में भी रहते हैं तो दे अलग रहते हैं. जॉब का रीज़न हो सकता है, पढ़ाई का रीज़न हो सकता है, किसी भी तरह के रीज़न की वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा है. तो ऐसे में, और दूसरा जो रीज़न है वो है स्मॉल फैमिली. इन माई टाइम्स वी यूज टू बी अराउंड four brother sisters or six brother sister, or 5 brother sister or 8 brother sister, but that time is totally gone. Nowadays we have either one brother one sister, or maximum to maximum there are 2 brother 1 sister, or 2 sister 1 brother. The family size is only confined to 2. There are only 2 children in the family, 1 brother 1 sister, or 2 sister or 2 brother, or at the most there are 3 children in the family. So that is the second reason that families are become small. The third reason is the working parents. No, because I don't think so in any city this thing is not there, that parents have started working, whether it's a big city or a small city, and especially in the metros both the parents are working, because in this time when the inflation is so much, it becomes very difficult to provide the good education to the children, or to provide all the facility to the children with a single income. I think because of this people are going for the jobs, they are doing business. In my groups every woman is working, either she is working from home or she is going and doing a job. They all are entrepreneurs. So, and this is but natural, they have to earn, because one hand is not sufficient to support the family. So that is the third reason that why we need parenting session. The fourth reason, which is the most crucial and the most important, is technology. Today technology has become so advanced that children, is it okay? So children are so advanced that they are technologically savvy. They know how to use the various gadgets, whereas the parents are not that tech savvy. So in order to compete with them, in order to control them, in order to know the various plus minus of these technologies, they need to equip themselves, and so they need the parenting sessions. So these parenting sessions are very, very important for the present generation, for the present parent, because they find it very, very hard to deal with their kids. There are so many things which need to be dealt with, it can be a food habit, it can be your child is throwing tantrums, it can be your child is too much involved in the gadgets. So there can be so many reasons. So let us discuss one by one. The first thing which the parents you need to know is that nowadays you are providing too much to your children. Too much in the sense there is abundance of facilities to the children. In my time, if we used to bring good marks in our exams, we used to get a watch, or we used to get any gift, But in present scenario, what happens? Everyone, parents are feeling it a prestige symbol. They are feeling it a proud to provide their children with everything before they ask. Children need not to ask anything, and they name a thing and it is there. And parents are providing these things to them. They feel very happy कि मेरे बच्चे के पास iPhone है, या मेरे बच्चे के पास टैब है, या मेरे बच्चे के पास PlayStation है. They themselves are equipping their children with all these kinds of things. Yes, Niti, these days kids are controlled by gadgets only. Why they are controlled by gadgets only? Because we are providing them with all the gadgets. I don't agree with this thing that parents cannot control. First, we bring the gadgets and give into the children's hand, and when they start using it, we go to the counselors to find ways कि इसको कम कैसे किया जाए, इसका ये टाइम कम कैसे किया जाए. So अगर आप शुरू से ही बच्चे को गैजेट्स देते समय अपने कुछ रूल्स बच्चे को बता दें.
फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे बच्चे हैं तो आप हमेशा उनको ये बोल सकते हैं कि आप पूरे दिन में 1 घंटा गैजेट्स पे रह सकते हो, 1 घंटा अपने मनपसंद का प्रोग्राम दे सकते हो. नो यू डिसाइड विच प्रोग्राम यू वॉन्ट टू वॉच. So give this responsibility to your child, isn't it? So if the child knows that the whole day I am getting a 1 hour of gadget time, so the child will be, when the children are small, they listen to the parents. Once they grow up, once their foundation is made, it becomes very difficult. But parents, let me tell you, जिनके छोटे बच्चे, मैं उनको आज से अभी से बोलना चाहूँगी कि try to control the habit of using gadgets in the very beginning. If your child is using gadgets more than the allotted time, it is your fault, because you are busy somewhere, you are talking on the phone, or you are doing your household work, or maybe you have to go somewhere socializing. So you say ठीक है, बच्चे को gadget दे दो और वो अपना time busy रहेगा और मुझे तंग नहीं करेगा. So we have been doing this. We do this and then जब बच्चे को हैबिट्स पड़ जाती हैं एंड देन हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम इस हैबिट को कैसे छुड़ाएं. वो चाहे वो फूड की हैबिट हो, वो चाहे गैजेट्स की हैबिट्स हो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट अ हैबिट. सो एज ए पेरेंट वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन. एज ए पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को हमें स्टार्टिंग में क्या चीज़ देनी है, कितनी देनी है और कब देनी है. दैट इज टोटली इन योर हैंड. लेकिन जब एक स्टेज पे आके बच्चा उसको यूज़ करने लगता है और उसके बाद आपका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ट्राई टू बी कॉन्शियस पेरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. दैट इज द वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट you need to there are some good thumb rules for positive parenting. Why I call it a positive parenting? We all are doing parenting. आप भी parenting कर रहे हैं, अपने बच्चों को bring up कर रहे हैं, मैं भी अपने बच्चों को bring up कर रही हूँ, and similarly every second person is doing that. But what is the difference between a normal parenting and a positive parenting? पॉजिटिव पेरेंटिंग का सबसे बड़ा एक जो सबसे पहला असूल है, दैट इज यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग व्हेन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग अप. Balance everything. It can be anything. So you cannot be careless in the beginning and later on you think चलो अब हम केयरफुल हो जाते हैं और अब हम बच्चे को उसके सही रास्ते पे लेके आते हैं. This is not done. You have to be very careful from the very beginning. But एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट थंब रूल है चाइल्ड अपब्रिंगिंग का, पॉजिटिव पेरेंटिंग का, वो ये है कि आपको अपने बच्चे को, जो आपका बच्चा है, एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे योर चाइल्ड इज विद हिज नेचुरल एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज. मैंने बहुत बार पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं. उनको अपना बच्चा छोड़ के बाकी सब बच्चे अच्छे लगते हैं. अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो डांस में अच्छा हो सकता है वह किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है वो एक्टिंग में अच्छा हो, क्रिकेट में अच्छा हो, बैडमिंटन में अच्छा हो, किसी भी चीज़ में अच्छा हो सकता है. सो यू ट्राई टू फाइंड आउट एंड praise that ability of your child instead of comparing your child with the other neighbor child who has scored 90% in the exams. योर चाइल्ड लाइक हमारी 5 उंगलियां जो है बराबर नहीं होती, पांचों अलग अलग होता है उनका साइज. इसी तरह हमारे बच्चे जो हैं, जो स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं. तो उनका जो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है. अगर कोई बच्चा म्यूजिक फैमिली से आ रहा है तो वो ज़्यादातर म्यूजिकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा. जो बच्चा एकेडमिक फैमिली से आ रहा है, उसके घर का माहौल ऐसा होगा तो वो एकेडमिक उसका ज़्यादा अच्छा होगा. सो नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद द अदर चाइल्ड एंड लोअर हिज सेल्फ एस्टीम. बच्चे को बुरा लगता है. मैंने देखा है, मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाती हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं आपके कमेंट्स के अभी बाद में आंसर करूँगी, बिकॉज वंस आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंटिंग, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो थोड़ा फ्लो टूट जाता है. तो जब मैं बहुत से स्कूल्स में जब जाती हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स आके इस चीज़ का कंप्लेन करते हैं कि उस बच्चे के तो इतने % मार्क्स आए हैं और मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए, जब मेरे बच्चे ने भी उतनी ही मेहनत की. ऐसे पेरेंट्स के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है. आई फील पिटी ऑन सच पेरेंट्स. वाई डोंट यू ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल इन योर ओन चाइल्ड एंड उसका जो नेचुरल एबिलिटीज़ है उसको एडमायर क्यों नहीं करते हैं.
Why you want your child to be a like a what you call एक कार्बन कॉपी दूसरे बच्चे का? ऐसा नहीं हो सकता. योर चाइल्ड इज बॉर्न इंडिविजुअल. ही इज नो टू इंडिविजुअल. इन शक्ल में भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते ना. हम दो इंडिविजुअल कभी सेम नहीं होते हैं. क्या आप और मैं सेम हैं? क्या मेरे शी कनेक्ट के सारे मेंबर मेरे जैसे हैं? जब हम एडल्ट्स एक जैसे नहीं हैं तो व्हाई यू बिलीव दैट योर चिल्ड्रन आर अलाइक? Never ever compare your children with the second child. That is detrimental to his own potential. So always admire your child's natural ability and try to recognize that. Try to facilitate that with your guidance, and your child will excel in that. दैट यू कैन नोट इट डाउन. अगर आप अपने बच्चे के नेचुरल पोटेंशियल को नर्चर करोगे, उस चीज़ में बच्चा आगे जाएगा. और अगर आप बच्चे को सिर्फ मार्क्स को लेके या दूसरे बच्चे के टैलेंट को लेके कंपेयर करेंगे, आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल होगा. ठीक है. तो ये एक पेरेंट्स लिख रहे हैं कि मेरे बच्चों को अब मैं फ़ोन नहीं देती हूँ. वेरी गुड. आपके में बच्चे को कहीं ना कहीं तो ड्रॉ लाइन करनी पड़ेगी. बिल्कुल टिम्सी, यू आर डूइंग वेरी गुड. ऑलवेज यू नीड टू लेस. ये इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पेरेंटिंग का थंब रूल निकल के आया है कि हमें अपने बच्चों को वो सब चीज़ें नहीं देनी है जो चाह रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव बिकम ए पपेट. आजकल बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है आपसे. इफ़ यू आर स्मार्ट, योर चिल्ड्रन आर स्मार्टर. You should know. If once you will say no, whether your husband, whether your family member, whether your grandparents, whether your sister-in-law, brother-in-law, nobody is going to say yes to that no. तो आपकी instruction, the another rule should be same from all the family member. If you are not giving the same instruction to the child, whether your husband or wife, whether your other family member, the child will take advantage of this and child will become जिद्दी बन जाएगा. उसको पता है मुझे कौन सी बात कैसे मनवानी है. बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि कभी मॉल में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, उनका बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो वो इस डर से उसको लेके दे देती हैं क्योंकि दूसरे लोग देख रहे हैं. वो दूसरे लोग जब आपका बच्चा बिगड़ जाएगा उस समय आपकी हेल्प को नहीं आएंगे. आप ही अपने बच्चे को ब्रिंग अप करेंगे और आप गलत सही क्या है उसका निर्णय सिर्फ आप करेंगे. लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दीजिए, फ्रीडम भी दीजिए. मैंने आजकल देखा पेरेंट्स को कि दे बच्चों को बहुत मॉनिटर करते हैं. फुल ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उनका. दे अब सो जाओ, अब उठ जाओ, अब ट्यूशन जाओ, अब दूध पी लो, अब खा लो, अब बस्ता खोलो, अब पढ़ लो, अब होमवर्क कर लो. ये सब चीज़ें बच्चे को एक पपेट की तरह ट्रीट करते हैं हम पेरेंट्स. लीव योर चाइल्ड एंड गिव हिम सम ब्रीदिंग स्पेस. दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. बच्चे को आप इंस्ट्रक्शन देते हो, उससे कम्युनिकेट नहीं करते हो. यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन. आपकी इंस्ट्रक्शन जितने आप डोंट्स बच्चे को बताओगे, बच्चा आपका उतना नेगेटिव बनेगा. तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पॉजिटिव पेरेंटिंग. पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है आप कोई बच्चे को चीज़ मना भी करना चाहते हो तो उसको पॉजिटिव वे से मना कीजिए. डू नॉट ऑलवेज यूज द वर्ड डोंट डू दिस. मैंने देखा है बच्चों को आजकल हमारे घर नहीं रह गए हैं, हमारे घर शो पीस हैं बच्चों के लिए. वो कैसे कि हम अपने बच्चे को बोलते हैं यहाँ नहीं बैठो, यहाँ नहीं कूदो, पलंग पे नहीं कूदो, सोफ़ा खराब नहीं करो, इसको हाथ नहीं लगाओ, उसको हाथ नहीं लगाओ. बच्चा बेचारा सोचता है, जो छोटे बच्चे हैं, कि हम करें तो क्या करें. घर है, उसको घर की तरह रहने दो. उसको हाउस की तरह मत रखो, उसको होम की तरह रखो. उसके अंदर बच्चे को एक्सप्लोर करने दो, सीखने दो. जब तक वो बच्चा आपका कूदेगा नहीं, घूमेगा नहीं, चीज़ों को छेड़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो कैसे उसकी नॉलेज बढ़ेगी. आप बच्चे को हर समय स्नब करते रहेंगे तो वो बच्चा अपना कभी भी कॉन्फिडेंस उसमें वापस नहीं आएगा. आज कहीं भी आपके बच्चे के 90% मार्क्स आए, आप स्टडीज़ के लिए बच्चे के पीछे पढ़ रहे हैं, आप अपने मार्क्स के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाना चाहते हैं हमारे बच्चे को इतने मार्क्स आए, 90, 80, 40% या 60% या 80%, जितने भी मार्क्स आपको चाहिए आप आए.
लेकिन वो मार्क्स सिर्फ आपके प्रेस्टेज या आपके कॉलर को ऊपर करती हैं, बच्चे को कोई हेल्प नहीं करती हैं। और मैं सच में बताऊं, आज इतने सालों के बाद आई एम 58 प्लस एंड आई हैव गॉन थ्रू सो मच एंड आई हैव डेल्ट विद सो मेनी किड्स। और आज में हम अपना ही देखें तो मैं आई थिंक आई एम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम ए वेरी नॉर्मल स्कूल। दोज मार्क्स हैज नॉट गिवन मी एनी बेनिफिट टिल डेट। मेरी मार्कशीट में कितने मार्क्स थे उसका मुझे कोई आई थिंक चीज़ नहीं, उसकी वजह से मैं कहीं आगे नहीं बढ़ी हूँ। आपका कॉन्फिडेंस, जितना बच्चे को स्नब करोगे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लोअर होगा। और अगर आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लोअर होगा तो आपका बच्चा कभी किसी के सामने बोल नहीं पाएगा। आज आपके बच्चे के 90-80% जितने भी मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद जब उसको ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू में जाता है तो वहाँ पे क्या चीज़ काम आती है? सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस काम आता है। How your child is knowledgeable and how your child is resourceful to answer the query put by the board. That is very important. आपके बच्चे को जितना फ्रीडम, जितना खुला छोड़ोगे, जितना उसको मॉनिटरिंग उसकी बंद करोगे, आपका बच्चा उतना अच्छा पनपेगा। ये मेरा आपको एक मेरी गारंटी है आपको, मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप ये सब करोगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और उसको लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अगर एज ए पेरेंट बन के अपने बच्चे को बड़ा करोगे, डोंट एवर बी अ स्ट्रिक्ट पेरेंट विद योर चाइल्ड। ट्राई टू बी अ फ्लेक्सिबल पेरेंट्स। Flexible in the sense you should know what is right, what is wrong, and negative instruction also should be told in a positive way. I will give you a very small example. When my child was in the 12th standard and he was pursuing his exams, board exams, मैंने देखा है इंडियन फैमिलीज में, दिल्ली में मैंने मैक्सिमम लोगों के घरों में देखा है, बहुत अब क्लोजली ऑब्जर्व किया, जब एग्जाम्स आते हैं तो पेरेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते हैं। बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस होती है, घर में कोई आएगा नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, कोई मूवी नहीं देखेंगे, कोई टीवी ऑन नहीं होगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, बच्चे के एग्जाम्स आ गए हैं। और जब इतनी बार ये वर्ड आप यूज़ करते हो फ़ोन पे, इंट्रैक्शन में, पर्सनल इंस्ट्रक्शन में, घर में डिस्कस करते हो, तो बच्चे के लिए वो एग्ज़ाम एक हवा बन जाता है। बच्चा सोचता है कि अरे ऐसा क्या होने वाला है, एग्ज़ाम 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 हो रहा है, इसका मतलब मेरे पेरेंट्स को तो मेरे एग्ज़ाम से लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर उस बच्चे को सब कुछ आता भी है तो वो बच्चा फियर से गिर जाता है और वो सब कुछ उसको भूल जाता है जब वो एग्ज़ाम के लिए जाता है। तो जितना आप रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखेंगे घर में, बच्चे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके बच्चों के 10th या 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दे रही थी, जब मेरे बच्चे के 12th के एग्ज़ाम्स थे, आई थिंक आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस थिंग विद माई ओन चिल्ड्रन। आई नेवर टोल्ड हिम टू सेट एंड स्टडी। आई ऑलवेज टेल हिम कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आप टहल लो, थोड़ा सा चले जाओ। और जब उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे उन दिनों में आई टुक माई चाइल्ड टू शो around 2 to 3 movies in the theater, and you won't believe all his friends' mother were like cursing me कि Gokul's mother is what? She is taking her child her child to a movie and our children are fighting with us. What she's trying to do. I think that was the reason that my son scored very good marks and he got admission in one of the best college in Asia. So जब बच्चे को, और मैंने कभी बच्चे से मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। आई सिंपली टोल्ड हिम वन इंस्ट्रक्शन आई गेव हिम, यू गो टू द सिटी, search the college you want admission in and whichever college you want to take admission, वहाँ का परसेंटेज आप पता कर लेना क्या है एंड अकॉर्डिंगली आप मार्क्स ले आना। मुझे मार्क्स थाली में रख के खाने नहीं है, ना ही मुझे किसी को दिखाने हैं। मार्क्स जो भी आप लाओगे वो आपके अपने लिए होंगे। आपको जो करना है लाइफ में वो करो और जिस कोर्स के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स आप ले आना। दैट इज़ ओनली फॉर द एडमिशन टू अ कॉलेज, नॉट फॉर द लाइफ। मेरी लाइफ में मार्क्स आपके कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। मेरी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये मायने रखता है। सो पेरेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टेल योर चिल्ड्रन टू बी वेरी, मेक योर चिल्ड्रन रिलैक्स्ड, make your children decide, make your children understand what they want to do, and
make them responsible. These qualities are the essential ingredients of a balanced personality, and that is the only ingredients or the trait which are going to help your child in the future. That is very, very important. Next is the quality time. Yes, क्वालिटी टाइम इज़, आई थिंक आजकल हम सबके पास बहुत टाइम है. आई थिंक मैं पर्सनली सोचती हूँ कि जो ये पैंडेमिक है, इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वी हैव सो मच टाइम विद आवर चिल्ड्रन. ऑल्दो अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ से देखें तो उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, क्योंकि बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं, बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ मिक्स होना पसंद करते हैं, बच्चे ग्राउंड्स में खेलना पसंद करते हैं, बच्चे एक दूसरे के घर जाना पसंद करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों बाहर ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे वो हैंग आउट करना पसंद करते हैं. उस समय इस कोविड में वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं और उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है. बट एज ए पेरेंट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make it as lively as possible. Spend time with your children in a very constructive way, in a very innovative way, in a very balanced way, and make them learn new things as per their age. If वो बड़े हैं आपके बच्चे, तो try to communicate with them, try to find out if anything is troubling them, try to find out that what they feel about you, or try to find out how they feel about their friends, or try to feel about what they feel about the course they are doing. It is very important to communicate. आजकल के अगर अपने टीनेजर बच्चों को देखा होगा, जो मैं ऑब्जर्व किया है, वो आई कांटेक्ट के साथ बात नहीं करते, क्योंकि वो बहुत सारा गैजेट्स के साथ रहते हैं. वो गैजेट्स के साथ इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम सब भी गैजेट्स के साथ रहते हैं. हम खाली बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम सब लोग गैजेट्स के साथ रहते हैं. और इसमें मैं खुद को भी एक्सक्लूड नहीं करूँगी. टाइम ऐसा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड में इस चीज़ का ध्यान रखना है. जब हम गैजेट्स भी हैं, आपका बच्चा गैजेट्स भी हैं, हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको दिन में 1-2 घंटे ऐसे तय करने हैं जब आप एक रूम में बैठे हैं और आपके सब बच्चे, सब फैमिली वहाँ बैठे हैं, एंड यू डिस्कस ऑन सम एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक. It can start from your child, it can start from your husband, it can start from your grandparents. Anybody can initiate a topic and then make your child to participate in that topic. Communication is very, very important in presently technical world, because we are becoming like robots. बच्चों से हम कोई सवाल पूछते हैं, वो एक मोनोसिलेबल में आंसर होते हैं, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता हमारे साथ. सो हमें इस चीज़ को रिवाइव करना है, और डोंट थिंक कि कोई बाहर से आके आप इस चीज़ को आपको बोलेगा और आप करोगे. आप अपने घर में अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ अगर ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे तो नेचुरली आपके बच्चे इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे. अगर आप सोचते हो कि बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, तो आपने जब पहले ही मान लिया है कि वो सुनते ही नहीं, तो दे विल नॉट लिसन. आप बच्चे को बात. और नेक्स्ट जो मेरी चीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम का भी स्ट्रेंथ है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवर एवर ट्राई टू लेबल योर चाइल्ड. हम बच्चों को अक्सर बोल देती है, आप तो डफर हो, आप तो नालायक हो, आपको तो कुछ आता नहीं है, उसको देखो वो कितना अच्छा है, आपको तो अकल ही नहीं है. हम जाने अनजाने में ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, और ये एडजेक्टिव बच्चे के मन की आवाज़ बन जाती है. उसको थोड़े दिनों बाद लगने ही लगता है कि मैं डफर हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है. तो नेवर, बिल्कुल ये चीज़ अपनी गांठ बांध लो, अपने बच्चे को इस तरह के एडजेक्टिव बिल्कुल यूज़ नहीं करो. ये बहुत आपके बच्चे की पर्सनालिटी को नीचे गिराता है. आपका बच्चा जो बोलता नहीं ना किसी के सामने जाके, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हो बच्चे. तो आप जब बच्चा कोई आता है तो उसको, जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके, उनके लिए मैं आपको एक चीज़ टिप देना चाहूँगी. जब भी आपके घर में कोई आता है, डोंट ट्राई टू मेक योर चाइल्ड ए शो पीस कि आओ गाना सुनाओ, कविता सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, कलर्स बताओ. दिस इज़ टू मच फॉर ए चाइल्ड. आपको कैसा लगेगा जब आपके कोई बच्चे के फ्रेंड्स आएंगे और आपको कहा जाए कि मम्मी आप ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ. बच्चा एम्बैरेस फील करता है, और बच्चे के मूड्स होते हैं. Some children are private, some children are extrovert.
सो ट्राई टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। आप ओवरनाइट बच्चे को एक्सट्रोवर्ट नहीं बना सकते किसी स्ट्रेंजर के सामने बना के, उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। हेयर एंड देयर आप बच्चे को बाहर लेके जाओ, दोस्तों से मिलाओ, उसके दोस्तों को घर पे बुलाओ। क्या आपने बच्चे के दोस्तों को बुला के कभी पार्टी की है? हम अपने लिए किट्टी पार्टीज करते हैं, हम अपने लिए अडल्ट पार्टी करते हैं। क्या आपने बच्चों के लिए कभी पार्टी ऑर्गेनाइज की है स्पेशली? अगर नहीं की है तो जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आज हमारे पास पेंडेमिक की वजह से इतना सारा टाइम है, आप बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेंड करना टाइम है कि क्वालिटी टाइम। आपको कौन कौन सी चीजें इश्यूज हैं, यू ट्राई टू डिस्कस विद योर चाइल्ड, ट्राई टू बी ओपन, ट्राई टू बी अ फ्रेंड विद योर चाइल्ड, ट्राई टू एक्सप्लेन योर चाइल्ड, यू नो, एंड लिसन टू हिम ओनली। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक टग ऑफ वार होता है, जिद होती है छोटे बच्चों के लिए। चाहे वो खाना खाना है, मैंने ये खाना बनाया तो आपको यही खाना है। अगर आप बच्चे की मर्जी का खाना अगर वो खा लेगा, अगर सब्जी आप बना रहे हो, अगर आप रूल बना सकते हो एक हफ्ते में कि अगर हफ्ते में 7 दिन सब्जी कुछ भी बन रहा है घर में, तो एक दिन आपकी पसंद का बनेगा, 6 दिन वो चीज़ें बनेंगी जो हम बना रहे हैं। तो आप बच्चे के साथ एक सामंजस्य या एक बच्चे के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो। हमें टग ऑफ वॉर नहीं करना कि यही कपड़े पहन के जाना है आपको फंक्शन में। क्यों? अगर बच्चा अपनी मर्जी से कोई कपड़े पहन के चला जाएगा तो क्या, ईगो तो आपकी भी बहुत बड़ी हो रही है। तो पेरेंट्स, आपको अपनी ईगो भी कम करनी है। ये नहीं कि हम हर बच्चा छोटा है तो हम हर चीज़ में एज अ पेरेंट एक्ट करके बच्चे को दबाते रहें। नो, यू नीड टू लिसन टू द चाइल्ड ऑल्सो कि उसको कैसा लगता है। अगर बच्चा अपनी मर्जी का ड्रेस पहनना चाहता है या अपनी मर्जी की कोई डिश खाना चाहता है उस दिन, नॉट ए बिग डील। चाइल्ड विल लिसन टू यू व्हेन यू विल लिसन टू योर चाइल्ड। आप तो अपने बच्चे की कोई बात मान नहीं रहे हो और आप चाहते हो बच्चा आपकी हर बात माने। हाउ इट इज पॉसिबल? You need to understand and you need to be a positive parents. Positive parents in the sense, instructions तो वही है जो पेरेंटिंग की है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी लानी है। घर के एटमॉस्फेयर को वैसा करना है जिसमें बच्चा स्ट्रेस नहीं ले, उसको ये नहीं लगे कि मैं घर आ गया हूँ तो ये बात नहीं करनी, ये नहीं बोलना, ये मम्मी को नहीं बताना, ये पापा को नहीं बताना। इट शुड नॉट बी दैट एटमॉस्फेयर। और अपने घर का एटमॉस्फेयर कंट्रोल करना टोटली आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे नेवर यू वरी कि आपके बच्चे आपको सुनते नहीं हैं, यू ऑलवेज वरी कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। आप जो करते हो बच्चे आपसे बिना कुछ कहे सीख रहे हैं। तो आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार तभी डाल सकते हैं, अच्छी हैबिट्स, अच्छी बातें, सब कुछ अच्छा तभी कर सकते हो जब आप खुद कर रहे हो। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को स्कूल्स में आके कंप्लेन करते सुना है, मैम को गुड मॉर्निंग बोलो, मैम को ये बोलो, ये मैम गुड मॉर्निंग नहीं करता। क्या आप सुबह उठ के घर में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं? करते हैं क्या? बहुत सारे घरों में आज भी नहीं होता होगा कि हम उठ के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, या हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, या गुड इवनिंग कर रहे हैं। मेक इट ए हैबिट। आप बच्चे को सिखाना है तो पहले आप खुद तो सीखिए। आपको बच्चे को सिखाने के लिए एनवायरनमेंट बनाना है। आपको इंस्ट्रक्शन का पुलंदा नहीं खोल देना है पूरा का पूरा कि ये करो ये करो। आप गुड मॉर्निंग नहीं करते हो, आप ये चीज़ें अपने कायदे से नहीं रखते हो अपने रूम में। पहले आप खुद तो बच्चे को करके दिखाइए। बच्चे मंकीज की तरह होते हैं। वो देखा ना, मंकी की कहानी सुनिए, एक ने अपना कैप फेंका तो सबने फेंका। तो बच्चों को अगर आपने सिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू inculcate those disciplines, those habits, those things in you. बच्चे, आप झूठ बोल रहे हैं कि फ़ोन पे बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, और आप एक्सपेक्ट करती है आपका बच्चा सच बोलेगा। तो बच्चे ने आपसे ही सीखा है। तो parenting is a very sensitive topic. It is a very sensitive issue. Children learn by watching, and what they watch दैट दे डू। अगर आप घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है तो बच्चा भी आपका इरिटेबल, झगड़ालू और हर चीज़ में फॉल्ट निकालने वाला बन जाएगा। तो आप उसमें फिर उसको काउंसलर, देखो बच्चे को आपको टाइम देना है। आज आप हंस के दे दें, नहीं तो कल काउंसलर के पास जाके रो के देंगे। ये मैंने कहीं सुना था जब मैं एक सेशन अटेंड कर रही थी कि एक काउंसलर ने कहा था
कि बच्चों को हमें समय देना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के दो, चाहे वो जब गलत हैबिट्स का शिकार हो जाए तब रोक के दो। तो आज आप अपने बच्चे के ऊपर वॉच या आई नहीं रख रहे हैं, आज आप उसको अच्छे संस्कारों की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, आज आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने खुद के इमेज को बढ़ाने में आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में लगे हैं, तो आपके बच्चे को वो सब चीज़ नहीं सीख पाएगा जो आप उसमें डालना चाहते हैं। तो quality time spending is very very important for the for you as a parent. Then बच्चों को आप gratitude सिखाओ। बच्चे आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जब उनको देते हैं तो उनको उस चीज़ों की इतनी आदत होगी, वो टेकन फॉर ग्रांटेड, दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर गेटिंग सो मच, बट देयर आर सो मेनी children those do they don't have even this much, so they are taking everything for granted. So try to make your children learn to be in gratitude. उसको ये बोलो, जब आपका बच्चा किसी चीज़ की कंप्लेन करता है कि मेरे पास ये नहीं है, तो आप उसको तुरंत ला के देने की बजाय उसको आप वो सारे एग्जाम्पल दो जिनके पास ये भी नहीं है। यू नो, आपका बच्चा किसी भी छोटी सी चीज़ को लेके आपके पास कंप्लेन लेके आता है कि देखो उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप सबसे पहले बच्चे को उन बच्चों का एग्जाम्पल दो जिनके पास वो भी नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे शेप अप करते हैं। इट इज़ टोटली इन योर हैंड। बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको हम जैसी शेप देंगे वो वैसी शेप ले लेगा, जैसी मोल्ड में डालोगे वो वैसी मोल्ड का आकार ले लेगा, छोटे बच्चे जो है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और वो बड़े उन्हीं संस्कारों को लेके होते हैं, या तो अब जब बच्चा छोटा है तब ध्यान दीजिए, और जो पेरेंट्स मुझे आज सुन रहे हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप आज भी उनके साथ डिस्कशन कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, एज ए फ्रेंडली रहिए, उनके साथ हर चीज़ को लेके ओपन वोकल रहिए। डोंट ट्राई टू से हश हश में बात मत कीजिए कि ये बात इसके सामने नहीं करनी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ भी आपकी फैमिली में। योर चाइल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ everything your child is undergoing. You should, and that you can do if you ask your child on a daily basis. आप अपने बच्चे को उदास देखते हो, आप एक आते जाते सरसरी सा पूछ लेते हो, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, और बच्चे ने बोला कुछ नहीं हुआ, और आपने उसको बस कर दिया बिकॉज आप अपने काम में इतने बिजी हैं। नेवर इग्नोर योर चाइल्ड सच सिग्नल्स कि आपका बच्चा उदास है या चुप चुप रह रहा है या अपने में मस्त है या एक कमरे में घुस के बैठा हुआ है अपने में ही मस्त है। डोंट इग्नोर दिस, ही माइट बी अंडरगोइंग सम ट्रॉमा। हो सकता है वो ट्रॉमा आपने उसको कुछ कोर्स करने को दिया उसको लेके हो सकता है वो ट्रॉमा उसके फ्रेंड्स को लेके हो सकता है उसके किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। सो बी वोकल विद योर चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग आई वुड सी, आई रन ए प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ मीहू। ये मेरा मीहू प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है मे आई हेल्प यू। So I help the parents with various issues they are facing. It can be with the kids, teenagers, or anybody, you know, any age group of a child. ये हमारा एक ब्रोशर है जो अगर आप चाहेंगे तो I can send you. So we help the parents with dealing with the various issues. See, I am not a clinical psychologist. Whatever I am telling you, I have gone through this, I have experienced this, I have interacted with n number of parents to know this. एक स्कूल में मैं थी और एक पेरेंट आया था वहाँ पे और रिजल्ट्स का डे था और आई थिंक उनका बच्चा 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था। मैं एक स्कूल की कंसल्टेंट हूँ रेवाड़ी में और मैं वहाँ बैठी थी और वो पेरेंट आया मेरे पास ऑफिस में और बोला मैम मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मेरे बच्चे के मार्क्स जो हैं 85 आए हैं, जबकि मेरे बच्चे ने सब कुछ लर्न किया था, सब कुछ अच्छा से घर से प्रिपेयर किया था, तो उसके 15 मार्क्स कैसे कट गए? और शी वॉज लिटरली क्राइंग, वो रो रही थी लेडी। तो मुझे बहुत तरस भी आया उस लेडी के ऊपर और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने बोला आपका बच्चा 85% मार्क्स लेके आपके सामने खड़ा है, पैट हिम एट द बैक,
आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप उस बच्चे के सामने ऑफिस में उसका पेपर लेके मेरे को ये चीज़ बता रही है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ ए मदर यू आर? डू यू थिंक दैट योर चाइल्ड विल एवर try to bring this much marks also? Because you are not happy. आपके अपने बच्चे की जो टैलेंट का मापदंड उसके मार्क्स नहीं है। आपका बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में गया तो उस समय उसको एक फियर भी आया मन में, तो उस समय वो कुछ चीज़ें भूल गया। यू कैन नॉट गारंटी कि वो घर से जब सब कुछ लर्न करके आया था उसको वहाँ पे आने के बाद भी वो सब चीज़ें याद थी। सो गिव हिम सम लेवरेज, कुछ तो उसको स्कोप दो। आप अपने बच्चे के ऊपर एक तलवार लेके सवार रहते हैं कि आपने पेपर कैसा किया और उससे पूछते हैं, फिर उसके मार्क्स आने पे उसको डांटते हैं। आप अपने बच्चे का हर पॉइंट के ऊपर कॉन्फिडेंस को स्नब करते हैं और फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो बोलता नहीं है किसी के साथ जाके। तो पेरेंट, यू, इट्स ए वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। यू डू नॉट ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन लाइक ओल्डन टाइम्स। आज के बच्चे स्मार्ट हैं, उनकी नॉलेज हमसे वे बैक ज़्यादा है, उनको बहुत सारा कुछ पता है, उनको लाइफ में आगे जाके क्या करना है। आप सिर्फ एक मेंटोर हो सकते हो, फैलिसिटेटर हो सकते हो, आप डिसाइडर मत बनो। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ये मेरे समय में होता था, लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन बहुत एक सैड चीज़ है जो मैं देखती हूँ आजकल कि आज भी ऐसा होता है बहुत सारे घरों में इफ्स एंड बट्स लगाए जाते हैं कि ठीक है, वो तो ठीक है मिसेस हांडा, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कहाँ मिलेगा? तो आपको क्यों इंजीनियर और डॉक्टर कॉलेज में ये एडमिशन चाहिए? आप दूसरी ऑप्शन क्यों नहीं देखते हैं? आपको क्यों ABCD वाले स्कूलों में बच्चों को एडमिशन चाहिए? क्यों आपके घर के पास के स्कूल में नहीं डालते हैं अपने बच्चे को? पेरेंट्स को मैंने एडमिशन के दिनों में मुझे इतने फ़ोन कॉल आते हैं, जबकि मैं इस काम में बिल्कुल इंडल्ज नहीं करती हूँ एडमिशन के लिए, लेकिन क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है। तो मैं उनको हमेशा फर्स्ट बात बोलती हूँ, फर्स्ट थिंग तो आई विल नॉट डू दिस, एंड सेकेंड थिंग, वाई यू वांट दिस? आपका बच्चा ABCD से स्टार्ट किसी भी स्कूल में जाना चाहता है, वो आपके घर के पास होना चाहिए। आप बच्चे को टॉर्चर करते हैं जब आप बच्चे को अपने घर से 15-20 किलोमीटर, मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, कोई भी स्कूल 20-25-30 किलोमीटर से नज़दीक नहीं है, और जो घर के पास स्कूल है वो पेरेंट्स को पसंद नहीं आते हैं। सो वाई यू वॉन्ट टू टॉर्चर योर चाइल्ड? अगर बच्चे का स्कूल 9 बजे लगेगा तो उसको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 उसकी बस आ जाएगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा उसको पहुँचाने में लगेगा। डोंट यू रियलाइज दैट? सो पेरेंट्स, इतने हैवी अमाउंट लेके आप बच्चों को एडमिशन्स करवाते हो और उनको पैसा दे के आप उनको एडमिशन दिलाते हो। इन स्कूलों के अंदर कुछ होता नहीं है। आप अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में डालिए जो स्कूल आपके घर के पास है। अच्छी खासी आज की डेट में, चाहे आपका बच्चे का स्कूल घर के पास है या दूर है या रिप्यूटेड है, नॉन रिप्यूटेड है, रिप्यूटेड स्कूल आप बनाते हैं, स्कूल रिप्यूटेड नहीं होता। आपका बच्चा जब मार्क्स लाता है, उस मार्क्स की वजह से वो स्कूल रिप्यूटेड बनता है, वो पहले से रिप्यूटेड नहीं होता है आप स्कूल। तो अगर आपका बच्चा खुद मेहनत करता है और अच्छे मार्क्स लाता है और आप एक अवेयर पेरेंट हैं और आप उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो किसी भी स्कूल में जाके अच्छे मार्क्स और अच्छा बन सकता है। मार्क्स के पीछे तो हमें भागना ही नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, मेरा पर्सनल यही व्यू पॉइंट है कि आई डोंट रन आफ्टर मार्क्स। आई थिंक जब मैं 10th में थी और 11th में थी, आई थिंक आई गॉट 60% मार्क्स और मेरी न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपा था। और आजकल तो 60% मार्क्स को पूछते भी नहीं है, यू नो। वो ठीक है, वो रैट रेस हमने ही क्रिएट किया, हम पेरेंट्स ने ही क्रिएट किया है ये रैट रेस। तो पेरेंट, जब आप अपने बच्चों को डाइवर्स फील्ड्स में डालना शुरू करेंगे, डाइवर्स उनके पोटेंशियल को टैप करना शुरू करेंगे, आप उनकी हर चीज़ को अहमियत देना स्टार्ट करेंगे, तो ये मार्क्स की दौड़ भी अपने आप कम हो जाएगी। बहुत सारे जितने भी वोकेशनल कॉलेजेस हैं, कोर्सेज वाले कॉलेज हैं, जहाँ पे कुछ टेक्निक्स या स्किल्स सिखाई जाती है, वहाँ 50% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते। लेकिन आपके अपने बच्चे को 90% मार्क्स लाके प्रेस्टिजियस कॉलेज में डालना है, वो आपको दिखाना है अपने सर्कल के अंदर, भले ही बाद में जाके आपका बच्चा बीच में छोड़ के पढ़ाई आ जाए। तो ये सब मत कीजिए। अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना इस पेरेंटिंग का फर्स्ट रूल है। अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, व्हाट योर चाइल्ड वांट, व्हाट योर चाइल्ड वांट टू डू, what your child capability and what is your child potential, what is your child natural ability, उसको पहले एक्सेप्ट करो। बच्चा इतना सा होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है।
मैंने देखा है प्ले स्कूल्स में, मैं क्योंकि बहुत सारे प्ले स्कूल से अटैच्ड हूँ, तो मैंने देखा है बच्चे जब समर वेकेशंस होती है उनको 10 तरह के कोर्सेज में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि मदर्स को फ्री रहना है। 9 से 10 यहाँ, 10 से 11 पेंटिंग क्लास, फिर डांस क्लास, फिर आर्ट क्लास, फिर ये क्लास, फिर वो क्लास। बट क्या आप बच्चे के बारे में सोचते हो उसको कितना ट्रामा फील हो रहा है? छुट्टियां हुई हैं, लेट द चाइल्ड इंजॉय समर वेकेशन। मैंने बच्चों को एंजॉय करते देखा ही नहीं दिल्ली में आके। मैंने देखा वो कोर्सेस ही कर रहे होते हैं इतनी गर्मी के अंदर। तो आप बच्चों को घर पे रह के एंजॉय करना, बहुत सारी हैबिट्स, रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाओ, उनको कज़न्स से मिलाओ, उनको किसी हिल स्टेशन पे ले जाओ, उनको बहुत सारी हैबिट्स इनकलकेट घर पे करो, उनको वो अपने पूरा शहर दिखाओ जो उन्होंने कभी नहीं देखा स्कूल के रूटीन में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हो किसी कोर्स में भेज के। आई थिंक दैट इज़ इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आपके बच्चे को थोड़ा सा इनपुट्स मिलते हैं, बट पहले ये तो समझो आपको बच्चे को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें तो आगे लेके जाओ। आप 10 चीज़ों में उसको डाल रहे हो, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या है। सो पेरेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे लगता है आज की डेट में बच्चों के स्कूल से ज़्यादा पेरेंटिंग के स्कूल होने चाहिए। आई वॉज इन ए स्कूल, दिल्ली में एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, प्ले स्कूल। मैं वहाँ पे बैठी थी और मैं वहाँ की काउंसलर थी, मैं वहाँ की कंसल्टेंट थी। और एक पेरेंट आया वहाँ पे एंड शी वॉज होल्डिंग ए सूटकेस इन हर हैंड। और वो गाड़ी से उतरे, गाड़ी वो पोर्च में पूरा लेके आए स्कूल के, और उसमें से उतरे और वो पूरा अम्ब्रेला खोला, बच्चे को अम्ब्रेला के नीचे वो रिसेप्शन तक लेके आए और उनके पास एक टैची था। हेलो हाय हुआ, क्योंकि पेरेंट्स को मैं जानती थी। बोले मिसेस हांडा हाउ आर यू? आई सेड आप कैसे हैं? मैंने उनको बोला कि ये आपके हाथ में ये सूटकेस है, आप क्या कहीं जा रहे हैं और आप बच्चे को अम्ब्रेला से भी लेके आए अंदर? बोले नहीं नहीं, इसके अंदर मेरे बच्चे के सारे फूड्स हैं, जो 2 घंटे में यहाँ पीटीएम में आई हूँ, उस दौरान उसको जो जो चाहिए मैं वो सब साथ लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा नहीं और कुछ खा सकता। इस तरह के पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे बीमार रहते हैं। आप अपने बच्चे को हर चीज़ खाने के लिए भी आप अपना बहुत सारा उसको फिल्टर करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, तो आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम, आज हमें सबसे ज़रूरत ज़्यादा क्या है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज हम कोविड के ज़माने में हम लोग क्या कर रहे हैं? काढ़ा भी पिला रहे हैं, गर्म पानी भी पी रहे हैं, और जो हमें कोई बोल रहा है हम खा रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे का नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम तभी डेवलप होता है जब एज ए पेरेंट आप शुरू से ही उसको कभी कभी इधर उधर, हमेशा बच्चे को फिल्टर पानी देना ही ज़रूरी नहीं है, हमेशा बच्चे को हर चीज़ छान के देना ही ज़रूरी नहीं है। बच्चे को कभी ना कभी इधर उधर का खाने की भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, WBC एंड RBC। जो RBC है वो हमारे ब्लड को कलर देती है, जो WBC है वो हमारी फाइटिंग मैकेनिज्म है। जैसे हमारे सरहद के ऊपर सोल्जर्स होती हैं, वो लड़ते हैं जब उनके ऊपर कोई दुश्मन अटैक करता है। अगर उन सोल्जर्स को ट्रेनिंग ही नहीं होती तो वो कैसे लड़ेंगे? इसी तरह से अगर हमारे को कोई बीमारी अगर अटैक करेगी, हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म जो WBC वो तैयार ही नहीं है, उनको आदत ही नहीं है किसी जर्म से लड़ने की, तो वो कैसे लड़ेंगी? कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा? यू नो, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा फिल्टर्ड और केयरफुल और हर चीज़। आई थिंक आई एम बॉर्न इन टू अ सिटी विच इज़ वेरी स्मॉल एंड आई हैव ईटन एवरी काइंड ऑफ फूड, यू नो, all street food I have eaten, and I think my immunity is the strongest in my home. तो ये चीज़ मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। जितना आप बच्चे को डेलिकेट बनाते हो उतना ही बच्चा, आज हम लोग क्यों धूप में भी निकल सकते हैं और बिना एसी के रह सकते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमने उन बच्चों को उसी तरह की ट्यूनिंग दी है। तो ये किसका दोष है? बच्चे तो वही हैं, दोष तो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटी टू देयर चिल्ड्रन दैट दे आर ग्रोइंग अप इन ए वेरी प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर एंड दे आर नॉट एबल टू मेक देयर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। एग्री? यस, रुचिका ने लिखा कि नो डेज चिल्ड्रन डू नॉट गेट मिंगल्ड अप विद हिज और हर कजन्स। यस, वो बच्चे तो मिलना चाहते हैं, हम बच्चों को मिलने ही नहीं देते हैं। हम आज कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को नानी के यहाँ, दादी के यहाँ बच्चों को रहने के लिए भेज देते हैं कई दिनों तक। उनको हर तरह का डर सिखाता है कि वहाँ जाएगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
अरे लीव योर चिल्ड्रन, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम ग्रो, लेट देम यू नो हर्ट देम सेल्फ एंड नो दैट हर्ट, मैं जब ऐसा करता हूँ तो मैं गिर भी सकता हूँ, उसको एक्सपीरियंस करने दो हर चीज़ को। हम बच्चों को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करना देना चाहते, उनको एक बिल्कुल शीशे के घर में पहले बड़ा करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और जब बच्चा छोटी छोटी लाइफ सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाता है तो उस समय हम काउंसलर के पास दरवाज़ा खटखटाते हैं कि देखो जी हमारा बच्चा तो ये समझ नहीं पा रहा, अब हमें बताओ हम कैसे करें, हमारा बच्चा तो बहुत डरा हुआ है, फील कर रहा है। सो पेरेंट, इट इज़ ओनस इज़ ऑन यू, यू नीड टू प्रिपेयर योर चाइल्ड in a very strong way, give him exposure to every situation, tell him everything, develop his immunity, be a friend to your child। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, I think if you ask me to speak on parenting, I can talk on days and days together, because इतना सारा कुछ है मेरे पास बताने के लिए with examples। लेकिन क्योंकि टाइम का जो स्ट्रेन है और मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं कि ये चीज़ें आप बच्चों के साथ अगर करेंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने मार्क्स ला रहे हैं, किस फील्ड में है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा हैप्पी चाइल्ड है कि नहीं है। आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, आप आगे निकलो, दूसरे को गिरा के निकलो, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे कम आने चाहिए। हम बच्चे को एक ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ नहीं दे रही है कि आपको हेल्प भी करनी है लाइफ में। हम बच्चे को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम बच्चे को दे रहे हैं बाय हुक एंड क्रुक, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है अपने दोस्त से। आज क्यों प्रॉब्लम है इतनी जेलसीज की और इस तरह की चीज़ों की, बच्चों के अंदर इतना कंपटीशन, मदर्स के अंदर इतना कंपटीशन, लेडीज़ के अंदर इतना कंपटीशन क्यों है? क्योंकि ब्रिंगिंग अप फॉल्टी है। हमने बच्चों को यही सिखाया है कि आपको आगे निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसके रास्ते में आपकी फ्रेंड आ रहा हो या कोई दोस्त आ रहा हो या कज़न आ रहा हो, आपको परवाह नहीं करनी, यू हैव टू विन द रेस। नो, आई थिंक दिस इज़ वेरी 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 बैड फॉर योर चाइल्ड पर्सनैलिटी। आपका बच्चा वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होना चाहिए, आपका बच्चा अकेडमिकली एक्सेलेंट नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे की बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और वो पर्सनैलिटी कोई मुगली गुट्टी नहीं है जो उसको पिलाने से आएगी, वो आपकी एक एक क्षण मेहनत से आएगी। आप 1 इंच बाय इंच जो बच्चे के साथ डेली मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत से आपके बच्चे के अंदर वो पर्सनैलिटी आएगी। इस तरह मेरे पास कोई ऐसी मुगली गिट्टी नहीं है कि मैं इसको गोल के आपको दूं और पी लो और आपका बच्चा जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि जो मैंने जितने टिप्स बताए हैं वो सारे के सारे हर बच्चे पे लागू होंगे। एज ए पेरेंट, एज ए योर एनवायरमेंट, एज ए योर फैमिली साइज, एज ए द पीपल इन योर फैमिली, यू हैव टू डिसाइड दैट कब कहाँ कितना आपको इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हर पेरेंट्स के ऊपर उतनी ही मात्रा में लागू नहीं होगी, मात्रा आपको डिसाइड करनी। क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी ऑफ लव, क्वांटिटी ऑफ everything you have to decide, understanding your child, understanding your family, understanding your everything। I think उसका मेरे पास ना तो कोई सोल्यूशन है और किसी के पास भी नहीं। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं काउंसलर से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से और घर आ जाते हैं, लेकिन क्या हम अपनी लाइफ में अपने परिवेश के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उन चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं? कभी हम अप्लाई नहीं करते हैं। वी सिंपली टॉक, वी शुड वॉक द टॉक। जो हम कहते हैं उसको लाइफ में करना भी चाहिए। मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में भी मैंने उनको कभी स्ट्रेस नहीं दिया है। माई डॉटर चेंज्ड हर सब्जेक्ट इन 11th स्टैंडर्ड, कैन यू बिलीव इट? टिल 11th शी वॉज ए साइंस स्टूडेंट एंड 12th शी वॉज ए क्रिएटिव स्टूडेंट। 11th में स्कूल को चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। But the moment my daughter said, I am not liking these science subject, I immediately shifted. And the result क्या हुआ? She excelled in her field. She is a trained fashion designer today. अगर हम उस समय इस चीज़ को बहुत बड़ा एक टेंशन मानते कि अरे अब कैसे स्कूल चेंज करें, कैसे जाएं,
11th में और बच्चे को स्नब करते कि आप जैसे भी है करो साइंस उसको। और मेरे जो बेटा है उसके जब 12th के जो स्कूल में एनालिसिस होता है, जब वो बच्चा कॉलेज में जा रहा होता है तो उस समय चूज़ करना होता है 10th के बाद कि आपको साइंस लेना है कॉमर्स स्ट्रीम लेना है। यू वोंट बिलीव, एक कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि माई चाइल्ड विल टेक है विल चूज इन नॉन मेडिकल। लेकिन एक दिन सडनली जब उसके स्कूल में एनालिसिस हुआ, एक काउंसलर ने किया तो उन्होंने बोला मिसिस हांडा योर चाइल्ड का जो एप्टीट्यूड का सारी जो हमने एबिलिटीज टेस्ट की है, मैकेनिकल एबिलिटी इज उसकी जो है वो 0 है, लेकिन बाकी सारी एबिलिटी उसकी A1 है, तो आप इसको नॉन मेडिकल मत लेके देना। तो क्योंकि मन में थोड़ा सोचा हुआ था शायद मैंने भी कि ठीक है बच्चा नॉन मेडिकल लेगा, ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, फिर मैंने बोला ठीक है द वे यू गाइडेड। उस बच्चे को उन्होंने कॉमर्स लेके दिया मेरे चाइल्ड को, एंड कैन यू बिलीव माई सन टॉप्ड इन स्कूल इन कॉमर्स। तो ये हमें कहीं ना कहीं लोगों की बात सुननी पड़ती है। वी कैन नॉट फिल्टर आवर ड्रीम्स ऑन आवर चिल्ड्रन। हम अपनी एंग्जाइटी अपने ड्रीम सब अपने बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। हम चाहे ज़िंदगी में कभी 80% मार्क्स कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन बच्चे को जरूर बोलेंगे तुम 80% मार्क्स लेके आओ। क्यों? ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। मैं 5-7 मिनट, क्योंकि मैंने लेट सेशन स्टार्ट किया था, तो मैं पेरेंट्स से कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिएगा। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। यस नीति, थैंक यू सो मच। बैलेंस पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिम्सी, यस, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन डू नॉट गेट मिंगल्ड अप विद कजन्स, यस, मैंने बोला इसके बारे में। वी हैव टू फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन आवर सेल्फ एंड देन ओनली वी कैन नर्चर आवर चिल्ड्रन। वेरी ट्रू तन्वी जी, वेरी ट्रू। सो सिंपल थिंग्स वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। यस, ये सब सिंपल चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। पेरेंटिंग इज़ नॉट ए कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना हमें जाके, ये हमें अपने अंदर से निकाल के चीज़ों को यूज़ करना है, यू नो। यस जसविंदर जी, थैंक यू सो मच। मीनू, थैंक यू। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। यस, आज मैं अपने बच्चों को जैसी दिखती हूँ मेरे बच्चे वैसे। आई थिंक आई फील वेरी प्राउड जब मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू नो। सो ये बहुत अच्छा लगता है और उनको वाकई प्राउड फील होता है, यू नो। वी हैव टू डू फर्स्ट एंड दे विल फॉलो। यस, रमन सोनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीति गखड़, थैंक यू सो मच। सोनिया जी, थैंक यू। शमिंदर, थैंक यू। तन्वी जी, थैंक यू। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, yes, it has to come from within, Tanvi, very correct. Self consciousness has to be there. Mishi Khurana, thank you, very informative and nice session, thank you so much. Yes, pandemic is a blessing, Harpreet, no doubt. We are getting so much time with our children, but we should know how to spend it constructively. That is very, very important. Yes, sometimes we can share our insecurity also, Shaminder, true. हमारे पास अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम अपने बच्चों से क्यों नहीं शेयर कर सकते? आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा एक्सपोजर है उनको, वो सब कुछ देखते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है। डोंट ट्राई टू हाइड थिंग्स फ्रॉम योर चिल्ड्रन अननेसेसरी। कंचन जी, थैंक यू सो मच। बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी खुद बच्चा बढ़ना पड़े। यस, अगर आप बच्चों को समझना चाहते हो तो आपका बच्चा अगर इस लेवल पे है तो आप इस लेवल पे आके उसको वो बात नहीं समझा सकते। आपको इस लेवल से इस लेवल पे आना पड़ेगा। और ये बात मैं अपने सब टीचर्स को भी बोलती हूँ जब मैं उनके सेशन लेती हूँ कि डू नॉट टीच इन द क्लास थिंकिंग दैट द चिल्ड्रन आर अडल्ट। टीच योर चिल्ड्रन इन द क्लास एज इफ यू आर ए चाइल्ड, यू नो। तो ये चीज़ पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल ट्रू होल्ड करती है, यू नो। इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन। Ma'am, my 3-year-old is getting aggressive since lockdown. She shouts, get angry on little things. Yes, स्वाति जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू प्ले। उनको नहीं पता ये कोरोना क्या है, उनको इतनी सीरियस नहीं पता। जब हम उनको रोकते हैं क्योंकि हम डरते हैं उनको नहीं हो जाए, तो उनको अंदर रखते हैं। लेकिन अंदर रखने के लिए बाहर जाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे पास कुछ होना चाहिए। हमें बच्चे को एंगेज करने के लिए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमारे पास उस बाहर जाके जो बच्चा इंजॉय ढूंढ रहा है उससे ज़्यादा अच्छा इंजॉयमेंट हमें घर में पहले क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें
हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें सोचना होगा, हमें तैयारी करनी होगी, हम ऐसी कौन सी चीज़ घर में करें। मे बी यू कैन अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड इंटरेस्ट, अगर उसको गेम में इंटरेस्ट है आप उसके लिए कोई गेम डिसाइड कीजिए। अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है आप उसके लिए कुछ क्वेश्चनियर बनाइए। अगर आपके बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो आप उसके साथ बैठ के पेंटिंग करिए। आप तो कहते हो कि बच्चे तुम घर पे बैठो, लेकिन मैं तो हूँ अपने में बिजी, तो बच्चा बैठ के क्या करेगा, वो बाहर जाने की जिद करेगा, और जब नहीं जाने देंगी तो वो शाउट करेगा, टेंट्रम थ्रो करेगा, और आप उसको स्नब करोगे। तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएगी, ये सब चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव पेरेंटिंग सेज आप अंडरस्टैंड कीजिए अपने चाइल्ड को, और इस पैंडेमिक के दौरान इतनी सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कीजिए। आप तरह तरह के खाने बना रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ टाइम अपने बच्चे के लिए भी तो आप ऑर्गेनाइज कीजिए कि हम ये चीज़ करते हैं, उसके लेवल की चीज़ें भी तो आप कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए। इफ़ यू विल डू दिस, आई एम वेरी श्योर योर चाइल्ड विल डेफिनेटली वुड लाइक टू स्टे एट होम. He will stop shouting, he will stop being aggressive, and he would love to stay at home, and even he or she will tell his or her 10 friends that stay with I am doing this thing with my mama papa. तो दोनों पेरेंट्स को मैंने देखा, बहुत फैमिलीज में फादर्स तो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में। आई थिंक उसके लिए अगर फादर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, इट इज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड योर वाइफ. Bringing up children is not your wife responsibility only. मैंने अपने बच्चों की, मैं बहुत बिजी रही हूँ. आई थिंक माई कैरियर वॉज गोइंग अप व्हेन मेरे बच्चे छोटे थे, बट आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू. मैंने अपने बच्चों की कोई भी PTM 12th तक आज तक मिस नहीं करी है, क्योंकि अगर आप बच्चे की किसी छोटी बड़ी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो भी नहीं इम्पोर्टेंस देगा. PTM में मैंने हमेशा गई हूँ और वहाँ उसको अटेंड किया है और उनकी बात को सुना है. मुझे टीचर से ज़्यादा पता होता था कि घर में स्कूल में बच्चे के क्या चल रहा है. आई कुड चैलेंज द टीचर कि यू कैन नॉट से कि मिसेस आंडा यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल. सो आपका इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए. Thank you so much to everyone. If anybody has got any problem related to their children and since the time is too short, आप मेरे से बात कर सकते हो फ़ोन पे. मेरा नंबर है 9810285135. Before starting She Connect or coming into this field, I am a parenting coach, I am a preschool consultant, so worked with the kids like anything. So you name a problem, I can give you the solution, though I am not a clinical psychologist. This is all my personal experience, my personal formulas which I evolved, and definitely they are going to help you out in your childbearing. Thank you so much. Thank you everybody for patiently listening to me, and I hope these small golden rules, thumb rules will help you, and you will find it conducive to your child upbringing. And if anywhere you are stuck, you feel that I am unable to find out a solution, you definitely anytime at any hour of the day you can get in touch with me. Thank you so much.